जो हमारा 9 वाला चिन्ह है उसका नाम सुनो जरा। उद्धरण, अवतरण। ऐसा लगता है कि नाम नहीं रखे, किसी बम या बारूद के नाम रखे हो। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हाउ आर ऑल डूइंग टुडे? सो आफ्टर आई गेस 1.5 week I'm recording some grammar video. It's very bad now. I should be very consistent. But I am a mother also, and my school also got open, so got little busy, okay? So let's see what grammar you are going to learn today in our grammar series. So here same sentence is written. Can you find any difference? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो. Any difference are you able to find? I did not change anything, but meaning is little bit different. Can you guess why it's like that? Okay, so here is written roko mat jane do. Just focus on my pause when I'm stopping, okay? So roko mat jane do, roko mat jane do. So can you tell me, just while changing this comma, जिसको हम हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, our whole sentence meaning got changed. Even we have not replaced the word, we have just changed a place of comma, but whole sentence got changed. So it says roko, stop, mat jane do, do not let them go. या roko mat, do not stop, jane do, let them go. Okay, so you will see, because of just one simple comma, the meaning of sentence got totally changed. So I hope you have understood कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं. So yes, we are going to learn today विराम चिन्ह और punctuation marks or sign. Okay, so there are many. Let's begin with that. ओके जी, सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी मीनिंग, परिभाषा, डेफिनेशन, अर्थ ऑफ विराम चिन्ह क्या होता है. अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी. दिस इज ऑल्सो यू शुड नो, बिकॉज एवरीवेयर यू विल फाइंड अ वर्ड चिन्ह चिन्ह चिन्ह. ओके, हाउ यू हैव टू राइट इट, हाउ यू हैव टू प्रोनाउंस इट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो अर्थ मीनिंग, विराम का अर्थ होता है स्टॉप. ओके, टू टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक. ओके, देन ओनली कंटिन्यू अगेन. सो स्टॉप, ठहराव, विश्राम करना या रुकना. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ विराम चिन्ह. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 18 टाइप्स ऑफ विराम चिन्ह. हाउ कम 18 टाइप्स केम? Yes, there are 18 types. Just check it, okay? Because I don't want to leave any sign. Whatever I read or I use. Okay, some of the places you will find 10 type of. But I have done all the research. I have made all the notes. So there are total 18 type of viram चिन्ह which we are going to learn today. Okay. अब एक चीज इसमें है, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है चिन्ह and चिन्ह. चिन्ह, अब you will see here, let me rub this so I can show you. See, this is a cha, half, ha and na. This is the correct way of writing चिन्ह. But many places you will find this also, half, na and ha. This is a wrong. Okay, this चिन्ह मतलब sign. Okay, तो जब भी हम यहाँ पे कहीं पे यूज करेंगे और wherever you are writing, this is the correct way of writing a sign और चिन्ह. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं. It's not a very big detailed explanation of each type. You will learn it quickly. Okay, so the first 6 types are, I have written the types, name, the sign and the meaning of that. Okay, so first type is अल्प विराम, जिसको हम बोलते हैं comma, and the sign of this, here it is. Then अर्ध विराम, that's called semicolon, and this is a sign of that. Then पूर्ण विराम, full stop. Please listen my pronunciation of Hindi punctuation sign. Okay, या विराम चिन्ह. I said अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम. Okay, then उप विराम. So here it is a colon.
Then Vismayadi Bodhak, we have covered one complete video on this sign, okay? Sign of interjection. Then Prashnavachak, and this is a sign which called question marks. So right now we are just seeing the type, meaning and sign. After all 18 types, we will learn a examples definition of it, okay? 7 is a koshtak. In Hindi we say, again I will say, listen my word or pronunciation or uchcharan carefully, because the name of this sign in Hindi is little tough, okay? So here we'll say koshtak. Koshtak means bracket, okay? Then there is a yojak chin. There is a sign, this is called hyphen. Then अवतरण और उद्धरण चिन्ह, जिसको हम inverted comma बोलते हैं. So here is the double inverted or the single inverted comma. Okay, then this is called the Laghav chin, okay, जिसको हम बोलते हैं abbreviation sign. Then there is a विवरण या आदेश चिन्ह. This is a sign or symbol, and this is called the sign of following, okay. Then रेखांकन चिन्ह, which is called underline. Here is a sign. Then lop या padlop, okay, so there is a 3 dot, mark of omission. Then पुनरुक्ति सूचक. पुनरुक्ति मतलब repetition of something, okay. So here is a repeat pointer symbol, and here is like this, okay. It's not like a comma, inverted comma, okay. This is just a double line like this, okay. I will explain it while giving a detail of it. Then विस्मरण या त्रुटिपूरक या हंस पद, जैसे आप कहीं मिस्टेक कर देते हो, कोई वर्ड छूट जाता है, जहां पे लिखते नहीं हो तो उस जगह पे आता है, ऑब्लिविएशन साइन इसको बोलते हैं. देन नंबर 16 इज अवग्रह या दीर्घोच्चारण, which is signs like a S, or that's called long pronunciation sign, okay. Now there are 2 more, 17 and 18. Okay, so number 17 is a तुल्यता सूचक, जिसको equal sign हम बोलते हैं, and this is a निर्देशन चिन्ह which is called the dash sign, okay. Now let's see a detailed explanation of each and every all 18 type of punctuation sign या फिर विराम चिन्ह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है. So let me tell you one thing, it is not based on just one place. I have collected this knowledge from different kind of books, from the shows like online tools, and the books from my own, from other places, from the grammar book, okay. So I'm trying to give you all the knowledge related to punctuation mark or viram chin. Please check it now, okay. Okay, so हमारा जो सबसे फर्स्ट टाइप है that is a अल्प विराम, मतलब कि कॉमा, ओके. अल्प का मतलब होता है वेरी लेस, थोड़ा, ओके. वेयर यू आर गिविंग अ वेरी लेस पॉज टू समथिंग, उसको हम बोलते हैं अल्प विराम, ओके. सो वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए, ओके, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं. ये कैसे जगह पे आता है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस वी यूज अल्प विराम, एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए, द वर्ड विच लुक लाइक सिमिलर, ओके, उन वहां पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं. या फिर वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, और वाक्यांश मतलब वाक्य मीन्स सेंटेंस, अंश मीन्स पार्ट, ओके. द डिफरेंट पार्ट फ्रॉम द सेंटेंस, इफ यू हैव टू जॉइन देम टुगेदर, दैट प्लेस ऑल्सो यू यूज अल्प विराम, ठीक है, या फिर कॉमा. अब लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ एक जैसे शब्द, जैसे कि राम, लक्ष्मण और सीता, ओके. नाउन ह्यूमन, जहां पे एक जैसे आ रहे हैं. सेकेंड इज फल, सब्जियां, बिस्कुट और मक्खन. मे बी समवन इज गोइंग टू बाय ग्रोसरी और समथिंग, ओके. तो जहां पे आपको एक जैसी चीजें दिखती हैं, एक कैटेगरी की, एक वेराइटी की, जब आप उनको डिफरेंट करते हो, दैट प्लेस ऑल्सो यू यूज अल्प विराम. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस, एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए. In that, अमित सुबह उठा, sorry, this is this one, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, okay, to add on the sentence, like how, अमित सुबह उठा, 1, ब्रश किया, 2, नहाया और फिर विद्यालय चला गया, okay. So आपने यहाँ पे देखा, this 1, 2, 3, okay. So अगर आप इतना बड़ा सेंटेंस एक साथ बोलेंगे, अमित सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया, गया और फिर विद्यालय चला गया, तो मीनिंग तो समझ में आ गया, बट इट्स नॉट अ करेक्ट वे ऑफ टॉकिंग. यू इफ यू नो अबाउट द कम्युनिकेशन,
अगर मैं यहाँ पे आके खड़े होके बोल दूं ओके ठीक है आज हम जा रहे हैं अल्प विराम पढ़ने के लिए, इसमें हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दैट्स सो बोरिंग। ओके, आपको पूरी तरह से समझना है, बोलना है, सामने वाले को समझाना है। सो उस जगह पे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें आपका पंक्चुएशन साइन बहुत ही हेल्प करता है। सो यू शुड नो इट वेरी वेल। ओके, सो अमित सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया और फिर विद्यालय चला गया। ठीक है, अब ये हमारा था फर्स्ट टाइप। लेट्स टेक मोर टाइप, देयर आर 17। सो हियर स्टिल वी हैव अ कंटिन्यूएशन ऑफ अल्प विराम। सो हमने अभी 2 देखा, अनदर 2 इज किसी कथन मीन्स समवन्स स्टेटमेंट, सम स्टेटमेंट्स को ज्यों का त्यों एज इट इज बोलने के लिए ओके यू हैव टू यूज अल्प विराम। लाइक दीपक बोला वहीं रहो। ओके, आई एम सेइंग समवन सैट, ओके बी देयर ओनली। सो सैट, he sat, then you have to put a alp viram. See, whenever I am taking a name of the punctuation sign, I will use a Hindi word. Okay, so you should know it, you will remember it. हाँ या नहीं के बाद, if you are saying yes or no, और किसी को संबोधित, if you are saying someone, if you are calling someone, okay, hey, इधर आ जाओ जरा, अरे सुनिए, okay, so that place also you have to use this. For example, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती, या फिर हाँ मैं वहां चली जाऊंगी। ओके, सो दीज वर द 4 पॉइंट वेयर यू हैव टू रिमेंबर फॉर यूजिंग अल्प विराम और कॉमा। ठीक है, ओके, सो आवर नेक्स्ट वन इज अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है, अर्ध मीन्स हाफ, आधा। ओके, व्हिच विल टेक मोर देन अल्प विराम। ओके, जिसमें अल्प विराम से ज्यादा टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं अर्ध विराम। ओके, इट इज नॉट द कंप्लीटली स्टॉप, इट मीन्स यू आर स्टॉपिंग इन बिटवीन द सेंटेंस। ओके, इफ द सेंटेंस इज वेरी लॉन्ग। सो हाउ, जहां अल्प विराम की अपेक्षा मतलब कंपेयर टू कॉमा, कंपेयर टू अल्प विराम कुछ अधिक देर तक रुकना हो, यू हैव टू स्टॉप फॉर लिटिल लॉन्गर देन अल्प विराम। अक्सर एक वाक्य में आए छोटे छोटे वाक्यों को अलग करने के लिए। ओके, मोस्टली वी यूज इट इफ द सेंटेंस इज वेरी लॉन्ग। ओके, टू ब्रेक देम, टू ब्रेक दो सेंटेंसेस इनटू द पार्ट वी यूज द अर्ध विराम। नाउ इफ यू विल सी हियर द कंप्लीट सेंटेंसेस इज रिलेटेड टू गेहूं, आटा, रोटी एंड ऑल। ओके, तो इसको अलग भी हम ऐसे सिंपल यूज कर सकते हैं। यू कैन स्टॉप हियर। ओके, बट वी हैव टू ऐड ऑन मोर from the same field, so we'll say किसान गेहूं उगाता है। ओके, गेहूं से आटा बनता है और आटे से रोटी बनती है। ओके, so you saw that there are 3 different sentences. Okay, to break them into the smaller part we have used the अर्ध विराम। ठीक है, ओके, so अब हमारा थर्ड है पूर्ण विराम, मतलब फुल स्टॉप, रुक जाओ, पूरी तरह से रुक जाओ, don't talk now. Okay, मतलब where you are done with your sentence, the sentence is completely full, so वहां पे आप लगाओगे पूर्ण विराम। Say with me, पूर्ण विराम। Okay, पूर्ण मतलब full, complete. Okay, पूरा हो चुका है तो पूर्ण विराम। Now इसका अर्थ है रुकना। Okay, वैसे तो आपका जितना भी विराम का ही मतलब होता है रुकना। ओके, विराम मतलब चिन्ह, मतलब कि रुक जाओ। ठीक है, लेकिन पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह से रुक जाओ। ओके, तो इसका अर्थ है रुकना। प्रश्न सूचक मतलब जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सेप्ट दो सेंटेंसेस यू हैव टू यूज एवरीवेयर, सभी वाक्य के अंत में लगता है। ठीक है, एक्सेप्ट वेयर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। जैसे कि हम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, खेल रहे हैं। आपने पूछा क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, मैंने पूछा खेल रहे हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, तो उसके बाद आता है उप विराम, जिसको हम बोलते हैं कॉलन। ये 2 डॉट दिखते हैं ना, ऊपर नीचे 2 डॉट, उसको हम बोलते हैं जब किसी कथन को अलग दिखाना है। ओके, वेयर यू हैव टू से सम स्टेटमेंट डिफरेंटली। हाउ, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। अब आपको विज्ञान बोला गया है, ठीक है, टॉपिक दिया गया विज्ञान, अब लेकिन इसके आगे ये 2 डॉट लगे, कॉलन। अब आपसे पूछा जा रहा है वरदान है या अभिशाप है। ठीक है, तो उसको आपको अलग दिखाना है कि आप क्या समझते हैं, एज पर यू व्हाट इट इज।
तो ऐसे जहां आप अनुच्छेद में, निबंध में, इन सब जगहों पे इसका प्रयोग करते हैं ना, जब हम बच्चों को देते हैं या किसी चीज को बताने के लिए प्रयोग करते हैं, तब उस जगह पे हम प्रयोग करते हैं उप विराम या फिर कॉलन या फिर 2 डॉट ऊपर नीचे, ठीक है। फिर हमारा आता है विस्मयादिबोधक। बहुत बड़ा नाम है इसका, विस्मयादिबोधक। से विथ मी, ओके। जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटरजेक्शन, जिसका होता है ये चिन्ह, एक लाइन आती है, इसके नीचे बिंदी लगती है, नॉट ऑन द टॉप। हर्ष मतलब खुशी, विवाद मतलब समवेयर आर्ग्यूमेंट, यू फाइटिंग और समथिंग इज हैपनिंग। घृणा मतलब हेट्रेड, यू आर नॉट लाइकिंग। आश्चर्य मतलब गेटिंग शॉक्ड ऑफ समथिंग। भय, स्केर्ड, ओके। बेसिकली ये सारी फीलिंग्स में आ जाएंगी आपकी। तो उस जगह पे आपका विस्मयादिबोधक या फिर इंटरजेक्शन साइन लगता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी बोलते हैं। नाउ जैसे आह कितना सुहाना मौसम है। अब नाउ टेल मी व्हिच वन आई हैव यूज्ड हियर, हर्ष, विवाद, घृणा एंड ऑल, व्हाट डिड आई यूज, ओके। देन प्रश्नवाचक, सिंपल है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखा था। प्रश्न मीन्स सिंपली वेयर यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन दैट विल कम अंडर द प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, ठीक है। कि आप कब आए, कब आए आप सब, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ताजमहल किसने बनवाया, पता है तो बताना मुझे। चाइल्डिश क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया, ये देखो मुझे 5 के बाद नंबर 4 लिखा है, वाह कितनी अच्छी मेरी मैथ है ना। 5 के बाद 6, तो हमने टोटल कंप्लीट कर लिए 6। अभी हमारे पास और कितने बचे हैं आउट ऑफ 18, बताना मुझे, जब तक मैं इसको रब करती हूँ दूसरा लिखती हूँ। ओके, सो हमारा नंबर 7 है कोष्ठक। से विद मी, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के हैं, 1 2 3, देख लिया साइन, ये तीनों डिफरेंट टाइप है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोष्ठक का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, टू क्लियरिफाई मोर सम स्पेसिफिक वर्ड, सम स्पेसिफिक फीलिंग्स, थॉट, इन सब चीजों को स्पष्ट करने के लिए। बेसिकली जब आप कहीं स्क्रिप्ट राइटिंग या कोई नाटक, अभिनय देखते हो तो उस जगह पे इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कोष्ठक का करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विश्वामित्र, नाम से ही पता चल जाता है, राइट, क्रोध से कांपते हुए, ठहर जा। I become I'm acting, okay? I don't know. So, Dharmraj. अब maybe someone can get confused कि who is a Dharmraj? So in bracket name is written Yudhishthir, okay? सत्य और धर्म के संरक्षक थे। So did you see? विश्वामित्र, ठहर जा। अब ये नहीं पता चलेगा ना कि वो क्या बोल रहे हैं, तो we know the विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए, he was very angry, okay? So यहाँ पे अर्थ को और स्पष्ट किया गया। धर्मराज को बताया गया कि किसका नाम है। सो बिकॉज ऑफ दीज 2 ब्रैकेट्स द सेंटेंस आर कंप्लीटली क्लियर, ठीक है, और स्पष्ट है आपके लिए। तो कोष्ठक मतलब जहां पे आप सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक चीज को और क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। ओके, सो हमारा 8th नंबर जो है वो है योजक चिन्ह या कि हाइफन, ठीक है। हाइफन आपने बहुत बार सुना होगा वर्ड। तो योजक चिन्ह को बोलते हैं जहां 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, वेयर 2 वर्ड यू आर गोइंग टू ज्वाइन देम, ठीक है। वो अपोजिट्स भी हो सकते हैं, विलोम शब्द हो सकते हैं, दिन रात, सुबह शाम, ठीक है, ऐसे जगहों पे भी होते हैं। या तुलना मतलब कंपैरिजन जहां पे किया जाता है वो शब्द भी होते हैं, जैसे कि पढ़ना लिखना, ठीक है। यू विल सी दे आर फ्रॉम सेम कैटेगरी, सेम बिरादरी, तो वहां पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा वह तिनके सा, वह तिनके सा, ठीक है। तिनके सा पतला है, कैसा पतला है? लाइक क्या बोलते हैं उसको, ग्रास, तृण, घास जो होती है, ठीक है, या स्ट्रॉ, ठीक है, वो तिनके सा पतला है। तो इसका मतलब दिस पर्सन का कंपेयर किससे किया गया? तिनके से, स्ट्रॉ से, ग्रास से, घास से, ठीक है। तो जहां पे 2 शब्दों को, एक जैसे शब्दों को जोड़ा जाता है या फिर जहां पे कोई कंपेरिजन दिखाया जाता है, उस जगह पे हम योजक चिन्ह, जिसका साइन ये है, दिस, नॉट इतना बड़ा भी नहीं होता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह या फिर हाइफन, ओके। जो हमारा 9 वाला चिन्ह है उसका नाम सुनो जरा, उद्धरण, अवतरण। ऐसा लगता है कि नाम नहीं रखे, किसी बम या बारूद के नाम रखे हो। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा को, ठीक है, जिसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और दोहरा डबल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। तो लेट्स सी कि कहाँ पे हम यूज करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सो किसी विशेष अक्षर,
शब्द, व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखने के लिए। ओके, अक्षर मतलब होता है आपका लेटर, शब्द मतलब वर्ड, व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु मीन्स थिंग। ऐसा लग रहा है जैसे संज्ञा सीख रहे हैं, नाउन, ठीक है। इनके नाम को लिखने के लिए आप प्रयोग करते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर इकहरा, उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह, ठीक है। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो गोदान नेम ऑफ द बुक, ठीक है। आप उसको बता रहे हो कि जो गोदान एक विशेष बहुत ही अच्छा उपन्यास है, प्लीज रीड इट, इट इज रियली रियली नाइस। हमने हमारे एमए में पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। गोदान के ऊपर एक मूवी भी है, हाँ, यू कैन सी दैट। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ठीक है। अब हम कहाँ पे यूज करते हैं दोहरा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है। वक्ता मतलब द स्पीकर या कोई लीडर या एनी पर्सनालिटी, अगर उसका कोई स्टेटमेंट है, यू कैन नॉट चेंज एनी वन स्टेटमेंट, राइट, यू हैव टू यूज दैट एज इट इज। तो उस जगह पे हम दोहरा कथन मतलब दोहरा इन्वर्टेड कॉमा हम यूज करते हैं, या फिर दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह यूज करते हैं। जैसे वक्ता के कथन का ज्यों का त्यों एज इट इज लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। और वन थिंग टू रिमेंबर, इसके पहले हमेशा अल्प विराम मतलब कि कॉमा, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह लगता है। जैसे डॉक्टर कलाम ने कहा था, ओके, सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ समवन, इट इज अ कोट सेड बाय समवन, राइट। ने कहा था, यू सो दिस द फुल दिस अल्प विराम और कॉमा, सपने देखो और उन्हें पूरा करो। So we cannot make any changes in this statement, we cannot modify, ठीक है। तो जहां किसी चीज को as it is आपको लिख देना है, उस जगह पे आपको अवतरण चिन्ह, जो दोहरा अवतरण चिन्ह होता है, उसका प्रयोग करना होता है, ठीक है। हम कहाँ पहुंच गए? 9th पे, अभी भी बचा है, रुको जरा। और क्या होता है लाइन? सबर करो। ओके, सो हमारा 10th नंबर है लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप सूचक, ओके, जो आपके किसी चीज को शॉर्ट कर देता है, ठीक है, या वर्ड को। इसको हम अब्रिविएशन साइन भी बोलते हैं, इफ आई एम सेइंग करेक्टली। जैसे कि प्रोफेसर बिकम प्रो, डॉक्टर बिकम डॉ, प्रश्न जो इतना छोटा ऑलरेडी था संक्षेप में, उसको भी प्र कर दिया, उत्तर बिकम ओ ओनली, राइट। तो ये जो आपके संक्षेप, इसमें देख रहे हो जस्ट स्मॉल जीरो लगा देते हैं, छोटा सा बिंदु जैसा, बट ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, ठीक है। सो दिस इज अ रॉन्ग, दिस इज अ करेक्ट। अगर आप ऐसे लिख भी रहे ना डॉक्टर स्मॉल, सो मेक इट लाइक दिस, ओके, डोंट डू लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका होता है लाघव चिन्ह। और दूसरा होता है विवरण या आदेश चिन्ह, ठीक है। वेट, बी देयर ओनली, हाँ, आई सॉ दैट, ओके। तो इसका प्रयोग हम करते हैं ओके, गुड, टेक इट, ठीक है। इसका प्रयोग हम वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक या निर्देश देने के लिए करते हैं। वाक्यांश मतलब होता है वाक्य का अंश। एग्जाम्पल, वचन के 2 भेद होते हैं, ओके। अब हम लिखेंगे कौन से, दैट इंफॉर्मेशन वी विल गिव, 1 वचन 2 वचन, ठीक है। तीसरा होता है आम के निम्न फायदे हैं। अब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। क्या निम्न फायदे हैं? खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, ठीक है, बहुत रसीला होता है, अचार बनता है, पापड़ बनता होगा, आम पापड़ बनता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चुप करो यार। सो द नंबर 12 इज अ रेखांकन चिन्ह, जिसको हम अंडरलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। सो यू ऑल नो कि अंडरलाइन का प्रयोग आप हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं आपके सेंटेंस में, उनको बताने के लिए करते हो, ठीक है। आपने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, रेखांकित शब्दों के उत्तर दीजिए या रेखांकित शब्दों का भेद बताइए, ठीक है। तो वो आता है अंडरलाइन। जैसे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ मैंने कौन सी 2 प्लेस के नाम, स्टेट के नाम को रेखांकित किया है। यमुना नदी उनको पृथक करती है, पृथक मतलब होता है अलग करती है, ठीक है। लोप चिन्ह या पदलोप मतलब जो चीजें हम या सेंटेंस बीच में ही छोड़ देते हैं, जैसे कि जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश या कुछ पार्ट को छोड़ करके लिखना हो, ठीक है। जैसे मैं सामान उठा दूंगा पर, अब पर पे सेंटेंस स्टॉप हो गया है कि पर क्या करना है, कि पर आप मुझे पैसे दोगे, पर मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा, दैट यू कैन थिंक, ओके। मैं सामान उठा दूंगा पर। वेरी डिस्ट्रैक्टेड क्लास टुडे, आई हैव वेरी नॉटी स्टूडेंट्स इन माई होम, सो आई एम सॉरी फॉर दैट।
सो हमारा नंबर 14 होता है पुनरुक्ति। ठीक है, पुनरुक्ति मतलब होता है किसी चीज का रिपीटेशन, दोबारा बोलना उसको। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कोई लाइन ऊपर लिखी है और सेम चीज आपको दोबारा नीचे कई बार लिखना है बीच बीच में, दैट प्लेस वी यूज दिस साइन। ठीक है, बेसिकली आपने गाने में इस चीज को सुना होगा, जैसे मेरा, इसका प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य को दोहराने से बचने के लिए किया जाता है, रिपीटेशन ऑफ द सेंटेंस और वर्ड। लाइक मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, यू नो दिस सॉन्ग राइट। देन शांति का उन्नति का इसके वास्ते निसार दे, देन अगेन मेरा मुल्क मेरा देश। वी डोंट वांट टू रिपीट दिस लाइन, वी विल जस्ट ऐड दिस साइन हियर। ओके, तो इस जगह पे आपका पुनरुक्ति या फिर रिपीटेशन ऑफ पॉइंटर सिंबल जिसको हम बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर हमारा फिफ्थ है विस्मरण या त्रुटिपूर्वक। कई बार होता है ना हम सेंटेंस लिखते वक्त कुछ भूल जाते हैं, तो इस साइन का आपने बहुत ही बार प्रयोग किया होगा, जो ऐसे होता है। ठीक है, जैसे राम मथुरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, अब यहाँ पे है राम जाएगा, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि हम क्या सेंटेंस भूल गए, हम यहाँ पे मथुरा लिखना भूल गए। सो वी विल ऐड दिस साइन। ठीक है, राम मथुरा जाएगा। ठीक है, अब हमारे बस बचे हैं लास्ट। Okay, so finally we have reached our last part of this. नंबर 16 है अवग्रह या दीर्घ उच्चारण, जिसका ये साइन होता है जो कि बहुत कम यूज होता है, बट यू शुड नो इट। लाइक जहां पे आपको लॉन्ग साउंड, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग करना होता है, वहां पे हम अवग्रह या दीर्घ उच्चारण का प्रयोग करते हैं फॉर लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लाइक माँ, बुआ। ठीक है, उस जगह पे। नाउ तुल्यता सूचक, यू नो इट्स कॉल्ड इक्वल साइन। फॉर एग्जांपल सोना इक्वल 60,000, अभी तो बहुत ही ज्यादा चल रहा होगा। ठीक है, रुपए ग्राम। निर्देशक चिन्ह होता है डैश साइन, इसका प्रयोग विषय, विवाह संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, मतलब टाइटल के आगे, या फिर उदाहरण के पश्चात, जब मतलब उदाहरणता या उदाहरण के तौर पर, जैसे। ठीक है, तो अध्यापक डैश तुम जा सकते हो। सो वी नो अध्यापक सेड ओके आप जा सकते हो। देन जैसे अगर हम बात करें कि कुछ बाहर खेले जाने वाले खेल के नाम बताओ, तो हम बोलेंगे जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस एक्सेट्रा। ठीक है, इत्यादि। तो फाइनली मैंने 18 कंप्लीट कर दिए। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।